option. ठीक? Okay, so it is saying photon will emit, what will be the frequency and what will be the wavelength. Okay, so there are two formulas which we have studied. First formula was frequency is equals to, if you remember Sam, frequency is equals to delta E, which was energy, divided by H, Planck's constant, right? And in order to find frequency, first we have to find out the energy. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? डेल्टा E is equals to, see इस चैप्टर में there are many formulas and देखो, in this chapter there are two things, there are models and there are formulas. Theoretical question आएगा तो it will come from model and numerical question आएगा तो ये इसी बोहर मॉडल से, बोहर मॉडल के फॉर्मूला से आएगा. ठीक है, so don't worry, एक बार रीड करोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी. So delta E will be 2.18 into 10 raised to the power minus 18, 1 upon n1 ka square minus 1 upon n2 ka square. This was the formula for energy, which you will calculate 2.18 into 10 raised to the power minus 18. N1 is where your electron is right now. It is here is at 5. So n1 ka square will be 25 minus n2 kahan pe ja raha hai? It is going to 4. 2. So 2 ka square will be 4, right? So when you solve this, it will come out to be minus 4.58 into 10 raised to the power minus 19, and the unit for energy is joule. Tick. So it is an emission energy. Why is it an emission energy? Because the electron is going from a higher energy state to a lower energy state, right? We all know that at higher energy state there is instability, and instability is due to higher energy. So when it leave that state and go to lower energy state, uski energy kam hogi, it will get stable. ठीक? Okay, this was the energy. Now to find frequency, which is mu, we'll see minus 4.58, which abhi humne energy nikali, divided by Planck's constant, which is 6.626. Acha, there will be times jahan pe you will be given Planck's constant ki value, Rydberg constant ki value, but there will be times it won't be given. So it is necessary कि आप इसको learn कर लें with unit. Okay, यहाँ पे जूल सेकंड में, कहीं पे रेडबर्ग कांस्टेंट will be used as joule second, कहीं पे it will be used as meter. So take care of that, joule second. Okay, when you solve it, I'm not solving it, I'm just seeing the solved example. It will come out to be 6.91 into 10 raised to the power 14 hertz. इस चैप्टर में थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन है. Take be attentive while solving these heavy calculation. Then we have to find out the wavelength. Wavelength is the formula for wavelength is okay, frequency distance equals to speed into time. Okay, so wavelength will be lambda is equals to c by f. Yeah, you can say mu. ठीक है, मतलब frequency divided by speed of light divided by frequency. Speed of light, we all know it is 3.8 into 10 raised to the 3 into 10 raised to the power, sorry, 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, and frequency अभी हमने ऊपर निकाली थी, it was 6.91 into 10 raised to the power 14 hertz. It will come out to be 434 nanometer. ठीक है. So we had studied frequency ka formula, we had studied wavelength ka formula, we had studied radius of orbit ka formula, and also I think we have studied velocity. Velocity ka formula we have not studied. Okay? So these were the things which we did in last class. Now in today's class, our first topic is limitations of Bohr's model. Okay, Bohr model की क्या limitation थी? So, Ma'am, I have one question. yes. Ma'am, that 2.18 into 10 to power is minus 18 is a fixed value of energy? 2.1 वो Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट. सी
there are certain constant which had the value, उसकी value multiply divide करके वहां पे see जो हम लोग formula derive कर रहे थे, you were not there, so it was RHC, it was like this, the formula which we derived, that was like this, delta जो that original formula is delta E is equals to RH 1 upon N1 square या minus 1 upon N2 square, ठीक है. Now since this is fixed, तो यहाँ पे rather than using this word RH, we use the value that is 2.18 into 10 raised to the power minus 18. अच्छा, this RH changes जब हम लोग वो निकाल रहे होते कहीं पे ऊपर भी हाँ कहीं पे ऊपर we were talking about wavelength, तो वहां पे इसकी value was different and यहाँ पे इसकी value is different, ठीक है. तो whenever we use Rydberg constant in energy, it will come out to be 2.18 into 10 to the power minus 18, ठीक है. Clear? Now coming back to limitations of Bohr atomic models, the सबसे बड़ी limitation जो Bohr model की, the biggest limitation of Bohr model was that it was only applicable to hydrogen atom. Okay, it was only applicable to hydrogen or hydrogen like species. Hydrogen like species मतलब जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो. Okay, so it was not able to explain the spectra of other atoms. ठीक, पहले लिमिटेशन तो ये हो गई. दूसरी क्या हुई, जब ये when this model came, then we didn't have that much एडवांस साइंस, ठीक है. तो ठीक है, उस टाइम हो गया, बट जैसे जैसे साइंस ने एडवांसमेंट की, जो और अच्छी यूजिंग वेरी गुड वेरी सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, व्हेन वी फाउंड आउट द spectrum of hydrogen, we saw that there were doublets, okay, not only fine lines, there were doublets of lines, and Bohr model was not able to explain that thing. Acha, Bohr, what were the spectral lines of hydrogen? The spectral lines of hydrogen which we have studied was that whenever an electron leaves its ground state and moves to upper higher state, so it it absorbs energy. Okay, so जो 7 कलर्स होते हैं या जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसमें से एक स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अब उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब साइंस ने एडवांसमेंट की, सो इट वाज देयर वर doublets were found, and Bohr atomic model was not able to explain that doublet. Okay, the next thing which was the limitation of Bohr atomic model is that it was not able to explain the Zeeman effect and the star effect. What is the Zeeman effect and the star effect? What जो spectral lines hydrogen atom की absorb हो रही थी, उसमें when magnetic field was introduced. Okay, what is Zeeman effect? Let us see. Zeeman effect is when magnetic field was introduced. एक minute. See, there are two effects, Zeeman effect and star effect. What was Zeeman effect? हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइन थी 8 बजे. यस स्पेक्ट्रल, यस वेरी गुड. स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी हाइड्रोजन की, उसमें व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड जो कि we denote magnetic field by B. Okay, so when magnetic field was introduced in this spectral lines, those lines were splitted. ठीक है, वो लाइन स्प्लिट कर गई थी, फट गई थी. ठीक, so that was Zeeman effect. ये hydrogen Bohr was not able to explain why is this happening. Similarly, what is star effect? What is star effect? When same spectral line में we introduce electric field, ठीक है, तो भी वही इफेक्ट देखने को मिला था. The spectral lines that they splitted. Okay, and Bohr had no explanation for that. ठीक है, तो it was also one of the limitation of Bohr model. Also अभी तक
no one was able to explain ki why is chemical bond being formed, why are atoms combining to form molecules through chemical bonds. This was also not explained. Okay, so these were the limitations of Bohr atomic model. इसके बाद और models आए, we'll study that. In other words, taking into account the points mentioned above, one needs a better theory which can explain the salient features of the structure of complex atom. So hydrogen was the simplest atom. उसमें एक electron है. Bohr's model was able to explain that. Okay, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें he was not able to explain. So seeing this, scientists felt that we need a more explanation on complex atom. We need more models, we need more up to date model to explain the complex atom. So इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया quantum mechanical model. So quantum mechanical model की तरफ बढ़ने से पहले, quantum mechanical model बढ़ने से पहले there were certain theories. पहले क्या आई, पहले आई dual behavior of matter. ठीक है, अभी तक इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड कि लाइट हैज डुअल बिहेवियर. ठीक है, लाइट के पास दो टाइप का बिहेवियर था. इट हैज पार्टिकल नेचर एंड इट हैज वेव नेचर. सो de Broglie, what did de Broglie said that matter like radiation, जैसे रेडिएशन के पास डुअल नेचर है, मैटर आल्सो एग्जिबिट डुअल नेचर, राइट. सो व्हाट वाज द डुअल नेचर, उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और उसके पास वेव नेचर भी है. ठीक है, मतलब वो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस भी शो करेगा और सॉरी वो इंटरफेरेंस भी शो करेगा और वो डिफ्रैक्शन भी शो करेगा. ठीक, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज which are shown by wave and particle respectively. ठीक, okay, so after saying this, after proving this, he said that matter like radiation should exhibit. उसने प्रपोज किया कि मैटर के पास भी डुअल प्रॉपर्टीज रही होंगी. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, पार्टिकल नेचर और वेव लाइक नेचर. ठीक है, मतलब फोटोन के पास इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैटर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेडिएशन, तो रेडिएशन में फोटॉन्स थे, तो फोटॉन्स के पास वेवलेंथ भी है ड्यू टू इट्स वेव नेचर जिसको भी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, एंड मोमेंटम भी है जिसको भी रिप्रेजेंट बाय p. ठीक, दिस मींस जस्ट लाइक द फोटोन, matter also has the same thing. Just like the photons, electron, matter की बात कर रहे हैं तो electron also has momentum as well as wavelength. ठीक है, so de Broglie from this analogy gave the following relation between wavelength and momentum of the particle. अब उन्होंने particle nature of matter और wave nature of matter को relate किया. कैसे relate किया? He gave a relation. He gave that lambda wavelength is equals to h upon mv. h is the Planck's constant, mv is the momentum. ठीक, mv, this product whole thing is the momentum which calls it p. m is the mass of the particle जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, and v is its velocity. Okay, de Broglie's prediction was confirmed experimentally when it was found that electron beam undergoes diffraction, a phenomena characteristics of wave. ठीक, तो उसके बाद इनका जो प्रपोजल था, it was confirmed experimentally जब देखा गया कि electron was showing diffraction. ठीक है, which is a characteristic that is exclusive for wave. ठीक, this fact has been put up in making electron microscope. Now since electron is showing wave nature, this fact was put up, this thing was used to make electron microscope. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक नेचर से वी हैव मेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक, an electron microscope is a powerful tool in modern scientific research because it achieves a magnification of about 15 million times. Electron microscope का magnification power कितना ज़्यादा है? It is 15 million times. ठीक, it needs to be noted that according to de Broglie, every object in motion has a wave character. So उसके बाद de Broglie ने क्या कहा कि not only matter, not only photon, any object which is in motion, it has both the natures. Which natures? Wave nature, and it has a wave. Basically, what did he say? He said that every object which is in motion has wave nature. उन्होंने particle nature की बात नहीं की. Any object that is moving, it has wave nature. Okay.
The wavelength associated with the ordinary objects are so short that their wave properties cannot be detected. और उसका explanation क्या क्या कि we are also moving, why don't we have wavelength? तो उसका explanation he gave, he said that the wavelength which are associated with these objects, they are very small. Why? Because the mass is very large. ठीक है, ज्यादा mass होने की वजह से the wavelength is very short, so it cannot be detected. ठीक. The wavelength associated with electrons and subatomic particles can, however, be detected experimentally. And because subatomic particles, the electron, protons, and neutrons are very small, so unki wavelength can be detected. Results obtained from the following problems prove these points quantitatively. Abhi kya hai? Abhi we'll solve two problems and we'll see how is electron ka wavelength is detectable and how is किसी body का wavelength is not detectable. जैसे कि in problem 2.12 if we see what will be the wavelength of ball, we have been asked wavelength of ball. Wavelength is equals to question mark. Of mass 0.1 kg, mass is given 0.1 kg and which is moving with velocity 10 meter per second. तो अभी हमने formula पढ़ा that lambda is equals to Planck's constant upon mv. So let us find out the wavelength. So if we find out the wavelength, lambda Planck's constant की value will be 6.626 into 10 raised to the power minus 34. Since momentum की जो unit होगी, अभी we'll convert it. So अभी इसको joule second लेते हैं. ठीक. Now mass we have taken in kg 0.1 and velocity we have taken 10. It is meter per second and it is in kg. Now joule second को we have to convert in meter per second. ठीक है. What is joule second? Joule second means energy per second, right? And energy is force per unit time. So we can write this like this, that force work done per unit time, it is force. हाँ, the force okay, not like this. See, joule per second is energy per second, right? Energy की unit हो जाएगी एक मिनट, एनर्जी की unit पार हो जाएगा force. यार इसका conversion I'm not able to explain, लेकिन conversion जो होता है that is कि जूल होता है एनर्जी इज हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. आ तो गया. मास इज केजी एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. सो जूल विल कम आउट टू बी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर. ओके, दिस वाज द कन्वर्जन फॉर जूल. ठीक है. ओके, तो वी कैन यूज दिस जूल सेकेंड विद केजी मीटर पर सेकेंड, राइट? क्योंकि वो है. अभी फाइनल आंसर तुम्हें बताते हैं कैसे. देखो, we can write like this 6.626 into 10 raised to the power minus 34. इस जूल सेकेंड को let's convert into kg and meter per second. Why? क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है it has kg and meter per second and we are finding out wavelength. और उस wavelength is a length, तो हमें उसकी जो unit चाहिए होगी it will be either in meter, centimeter और kilometer. ठीक है. So we have converted joule per second as kg meter square upon second square, right? Then we have 0.1 kg into 10 meter upon second. ठीक, समझ में आ गया? Okay, now let us solve this thing. If ये numerical value I am just solving it from the solved example, it will come out to be 6.626. अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा, वही आएगी 6.626 into 10 power minus 34. अब देखो, this kg will be cancelled by this kg, ये meter will be cancelled by this, right? Now this was joule second, यहाँ पे एक second भी था. This second and this second. तो बचा क्या हमारे पास? Meter. Okay, so wavelength that is associated with that ball came out to be 6.626
into 10 raised to the power minus 34. So small. The wavelength is very small when we have taken merely 0.1 kg. बहुत छोटा मास हमने लिया है तो इतनी छोटी वेवलेंथ आई है. तो इमेजिन जो हमारा मास है 50 kg 60 kg उसकी वेवलेंथ कितनी छोटी आएगी. ठीक. उसी के comparatively let us solve the next question, which is the wavelength of electron. So we have been given mass of electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, and its kinetic energy is 3 into 10 raised to the power minus 25 joule, and we have to calculate its wavelength. Achha, do you know the relation between the wavelength, द मोमेंटम और उसके बीच का वो पता है आप लोगों को? पी एंड के के बीच का रिलेशन. एनीवन? Moment, the relation between momentum and kinetic energy, it is something under root 2 mk. P is equals to under root 2 mke, like this. Let me see. Under root 2 into m into half mv square. So it will come out to cancel जाएगा. Will come out to be m square. Yes. So the relation is that momentum equals to under root 2m into kinetic energy. ठीक है, 2 into mass into kinetic energy. So we can do two things. We can either directly solve like this, h upon under root 2m ke. यहीं पे डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं. It will come out to be 6.626 into 10 raised to the power minus 34 same joule second divided by under root 2 into mass 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into kinetic energy is 3 into 10 raised to the power minus 25. ठीक है. So इसको जब आप solve करोगे, I'm not solving ऐसे ही, it will come out to be 896.7 into 10 raised to the power minus 9 meter. Okay. See, वहां पे -34 में आ रही थी, यहाँ पे -9 में आ रही है. थोड़ा सा और, हाँ, -9 मीटर. ठीक, नैनोमीटर. Right. So see the difference between electron and a body of 0.1 kg. ठीक. So that's why यहाँ पे जो डी ब्रॉगली ने अपना प्रपोजल रखा था कि every body which is moving, it has it has wavelength associated with it. And why do we not feel that? Because our mass is very big, तो उससे वो feel नहीं होगा, detect नहीं हो पाता है. ठीक है. फिर उसके बाद next problem में we have been asked to find out the wavelength of photon. Calculate the mass. उसमें we have to find out the mass of photon when wavelength is given. ठीक है. So I'm not solving it fully. I'm just discussing the answer. When you solve it by putting the formula and mass को unknown मान लेना, फॉर्मूले में जो चीज दी हुई है वो डेटा रखना, तो फाइनल आंसर जो आएगा मास का, इट विल कम आउट टू बी 6.135 into 10 raised by minus 29 kg. जब आप -29 kg का मास ले रहे हो, then you have 3.6 angstrom का wavelength. Okay, so imagine for wavelength to be in meter, एक अगर आपको मीटर मिलाना हो, एक होल नंबर मीटर मिलाना हो, तो कितना छोटा मास लेना पड़ेगा. ठीक. तो ये इस बात से डी ब्रॉगली की वो बात प्रूव हो जाती है इन दो प्रॉब्लम से कि जितना छोटा मास उतनी ज्यादा वेवलेंथ. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, जब हम लोग क्वांटम मॉडल की तरफ मूव कर रहे थे तो उसमें इंपॉर्टेंट एक आया था step, that was Heisenberg's uncertainty principle. What did he say? He said that he was a German physicist. He stated that it is impossible to determine the exact position and exact momentum of an electron. ठीक है. Why did he said that? उन्होंने dual nature of dual behavior of matter या dual behavior of radiation पे he when it was proved that electron and matter both have dual radiation and dual nature, so he gave a consequence. He said that
you cannot determine exact position and exact momentum. Exact momentum से velocity, because mass तो हमें पता ही है, तो momentum से उनका मतलब था velocity. So he said you cannot determine exact position. Position मतलब wavelength, okay? Position मतलब wavelength और momentum मतलब velocity. So we cannot calculate the original position and original momentum of an electron. Okay, why? Because उसका रीजन इन्होंने ये दिया था कि हाँ, let us understand the example. Suppose you are asked to measure the thickness of a sheet of paper with an unmarked meter stick. Obviously, the results obtained would be extremely inaccurate and meaningless. In order to obtain any accuracy, you should use an instrument graduated in units smaller than the thickness of sheet of paper. ठीक है? अच्छा, मान लो एक आपको sheet of paper दी गई और आपसे कहा गया measure this thickness. ओके, सो आपने एक ऐसी स्केल ली जिसपे कोई मार्किंग नहीं थी. So इस टाइम whatever the result will come, it will be inaccurate and it will be meaningless. ठीक है? Now, if you want to calculate the thickness of the paper, you should have a instrument जिसपे उतनी छोटी रीडिंग्स हो, राइट? माइक्रोमीटर्स का अगर हमारा पेपर है तो उतनी छोटी रीडिंग्स कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो which can read that reading. Okay, now analogously in other to determine the position, तो उसी के एनालॉग में अगर हम बात करें तो डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वी मस्ट यूज अ मीटर स्टिक कैलिब्रेटेड इन यूनिट्स ऑफ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या इलेक्ट्रॉन की भी कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है तो आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा जो कि उस पोजीशन को जो चीज आप मेजर करने जा रहे हो उससे भी छोटी यूनिट उसके पास अवेलेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थिकनेस ऑफ पेपर मेजर कर रहे थे तो हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए दैट मस्ट बी माइक्रोमीटर्स. तो ऐसे ही इफ यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कोई ऐसी मीटर स्टिक या कोई ऐसी इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए जिसकी डायमेंशन इलेक्ट्रॉन से भी छोटी हो. और ये भी है कि keep in mind that an electron is considered as a point charge and therefore it is dimensionless. And also we know electron बहुत छोटा होता है इसलिए we consider electron as dimensionless. वो 0D में आता है ना, 2D 1D उसकी कोई dimension नहीं होती है. Okay, to observe an electron we can illuminate it with light or an electromagnetic radiation. अब electron देखने के लिए हमें उस पे कोई energy देनी पड़ेगी, right? उस पे light देनी पड़ेगी, electromagnetic radiation देनी पड़ेगी. And also the light used must have a wavelength smaller than the dimension of electron. अब अगर मान लो वो लाइट हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो उस लाइट की जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो हमारे इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से भी छोटी होनी चाहिए. The higher the momentum of photons of light would change the energy of electron by collision. अच्छा, अब अगर if we use higher energy, ठीक है, हमसे कहा गया lower energy दो, but कॉन्ट्रास्ट से बात करते हैं. इफ वी यूज हायर एनर्जी ऑफ फोटॉन्स तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा एंड इट विल कोलाइड, जिसकी वजह से उसका वो नहीं निकल पाएगा पोजीशन. व्हाई? क्योंकि वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके वो मूव करने लगेगा और इलेक्ट्रॉन इज डायमेंशनलेस सो वी कैन नॉट यूज उसके डायमेंशन की यूनिट की फोटॉन्स, राइट? तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो यूज करना ही पड़ेगा. अगर हम बहुत नहीं पॉइंट्स में ही एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो भी वो इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि इलेक्ट्रॉन उसको एब्सॉर्ब करके मूव करने लगेगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ ही एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सेप्ट. टू पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ निकालना मींस साइमल्टेनियसली एक साथ पोजीशन या वेलोसिटी दोनों चीजें एक साथ निकालना इट इज इम्पॉसिबल. हाउ डिड ही से दैट? उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स इज द change in position multiplied by p, delta p change in momentum. Change in momentum का मतलब क्या होता है? Change in velocity, right? क्योंकि delta p x with respect to x is less than h upon 4 pi. उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया. डेल्टा पी एक्स में क्या क्या आएगा? डेल्टा पी एक्स में आएगा m और v. मास तो चेंज होता नहीं है तो इसका मतलब ये बात कर रहे हैं डेल्टा v की. सो वी कैन राइट लाइक दिस, delta x into delta v is equals to h upon 4 pi.
ठीक है, और यहाँ पे जो m यहाँ से हमने निकाला उसको हमने यहाँ कर दिया। ठीक, now where delta x is the uncertainty in position and delta v is the uncertainty in velocity. Now if the position of electron is known with high degree of accuracy, मतलब delta x बहुत small है, तो velocity of electron will be large. ठीक है, क्योंकि see it will always be less than or equal to h upon 4 pi. h upon 4 pi की कुछ तो वैल्यू आएगी. Now if I'm saying कि हमने accuracy से position निकाल ली, ठीक है, तो सिंस इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल, तो उसकी जो भी पोजीशन आएगी इट विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, तो उसकी पोजीशन बहुत छोटी आएगी, तो इस वैल्यू को, ये डेल्टा वी को बहुत बड़ी होनी पड़ेगी. ठीक है, तो वो प्रिसाइज तो होगी नहीं. अच्छा, अगर उल्टा करो, डेल्टा डेल्टा वी निकाल लो तो डेल्टा एक्स लार्ज आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ एक चीज गलत आएगी ही. ओके, तो we'll always have a blurry picture, we also will always have a fuzzy picture of इलेक्ट्रॉन की. इधर उसकी डेल्टा एक्स की वैल्यू सही आएगी या उसकी डेल्टा वी की वैल्यू सही आएगी, मतलब इधर उसका पोजीशन हमें मिलेगा या तो उसकी वेलोसिटी मिलेगी. ठीक, तो दिस वाज Heisenberg's uncertainty principle. अच्छा, what is the significance of this principle, significance of this principle, कैसे क्या हुआ वो देखते हैं. Out of the important implications of the Heisenberg's uncertainty principle is that it rules out the existence of definite path or trajectories of electron and other similar particles. अब ये कह रहे हैं कि इससे, इनके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन का कोई डेफिनेट पाथ नहीं है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या उसके इलेक्ट्रॉन से सिमिलर जो भी पार्टिकल्स हैं उनका डेफिनेट पाथ नहीं है, वो रैंडमली मूव करते हैं. ओके, यहाँ से रैंडम मोशन का एक थोड़ा सा आइडिया आया. ठीक, the trajectory of an object is determined by its location and velocity as various moment. If we know where a body is at particular instant, we will also know its velocity and the forces acting on it, and we will tell कि उसका क्या ट्रेजेक्ट्री है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं, उसकी ट्रेजेक्ट्री अलग अलग पार्टिकल अलग अलग पॉइंट पे उसकी पोजीशन निकालते हैं ना, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी निकाल के ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं. एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट एक ही जगह की पोजीशन और एक ही जगह की वेलोसिटी हम इलेक्ट्रॉन की निकाल ही नहीं सकते, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री हम निकाल ही नहीं सकते. इलेक्ट्रॉन का ट्रेजेक्ट्री क्या होती है कि वो जो पाथ फॉलो कर रहा है. ठीक है, सो वी आर नॉट एबल टू find out the path of electron. ठीक, तो इससे ये एक तरफ एक पॉइंट आया, प्लस पॉइंट आया कि इलेक्ट्रॉन इज इन रैंडम मोशन. ठीक है, we therefore conclude that the position of an object and its velocity fix its trajectory. अभी जो मैंने आपको समझाया, since for a subatomic object such as electron it is not possible to simultaneously determine the position and velocity, so it is not possible to talk about the trajectory of electron. ओके, क्योंकि हम उसका पोजीशन और वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, सो वी कैन नॉट फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये उसका एक आफ्टर इफेक्ट आया, एक मतलब प्लस पॉइंट आया. अच्छा, इफेक्ट क्या आया? The effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic object and is negligible for that of macroscopic object. अच्छा, माइक्रोस्कोपिक क्या? देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़ा होगा वैसे वैसे आप उसकी ट्रेजेक्ट्री निकाल पाओगे, राइट? उसका पोजीशन और उसकी वेलोसिटी निकालनी आसान हो जाएगी. मास बड़ा होगा, चीजें बड़ी होगी, यू कैन इजीली फाइंड आउट थिंग. तो जो हमने अभी उनका हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक जो इफेक्ट पढ़ा, या हम कह सकते हैं जो सिग्निफिकेंस पढ़ा, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रॉन एंड इट्स अलाइक पार्टिकल्स. ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाएं 10 रेज टू द पावर 6 पे, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट उसकी वैल्यू. डेल्टा वी और डेल्टा एक्स की जो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, इट विल कम आउट टू बी 10 टू द पावर -28, व्हिच इज नॉट नेग्लिजिबल. ठीक, so for dealing with macroscopic object, Heisenberg uncertainty principle is of no use. It is only applicable to subatomic particles. ठीक है. Okay, then question कह रहा है the value of delta V delta is obtained is extremely small. Therefore, one may say that in dealing with milligram or heavier size object, the associated answer. ठीक है, तो ये जो कह रहे हैं, जो हमने अभी वैल्यू निकाली, it came out to be 10 raised to power -28. कौन सी वैल्यू निकाली? He said for example, let us talk about a mass of 10 raised to the power -6 kg.
ठीक है, या 1 मिलीग्राम का इफ वी फाइंड द अनसर्टेनिटी एंड द अनसर्टेनिटी केम आउट टू बी 10⁻⁻28, मतलब इतनी छोटी वैल्यू, एंड इतनी छोटी वैल्यू कैन बी निग्लेक्टेड फॉर अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. सो यही कह रहे हैं कि द कैलकुलेशन सेज दैट फॉर अ मिलीग्राम साइज ऑब्जेक्ट या उससे भी हैवियर ऑब्जेक्ट, द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज कोई इफेक्ट नहीं आता है. ठीक है, कहा 1 kg पे अगर आप 0.00 -28 का इफेक्ट लाओगे, इट विल हैव नो यूज. ठीक, इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक, अब चलो माइक्रोस्कोपिक बात करके देखते हैं. माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन पे अगर हम सेम वो लगाते हैं, क्या ये डेल्टा v इज इक्वल्स टू डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा v h अपॉन 4 पाई, तो क्या आता है, इट कम्स आउट टू बी, जब हमने मिलीग्राम पे लगाया था तो इट केम आउट टू बी 10⁻⁻28. जब हमने लगाया 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg पे, तो इट केम आउट टू बी 10⁻⁻4 मिलीग्राम, यानी 10⁻⁻3 kg. ठीक, जब -3 पे लगाया तो इतना आया, -31 पे लगाया तो इतना आया, मतलब इट हैज सम सिग्निफिकेंस, राइट. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे इसका सिग्निफिकेंस है, बट हायर ऑब्जेक्ट पे, हेवियर ऑब्जेक्ट पे इट हैज नो सिग्निफिकेंस. ठीक, अच्छा. It is therefore means that if one tries to find the exact location of electron, say to an uncertainty of 10⁻⁻8, then the uncertainty of velocity will be. अच्छा, अब कह रहे हैं कि अगर मान लो हम 10⁻, if we have uncertainty of 10⁻⁻8 in position, ठीक है, delta x is this and we find out delta v, तो it will come out to be 10⁻⁴. See the difference जो अभी I was telling you कि अगर डेल्टा x निकालोगे, डेल्टा x बहुत छोटा आएगा, डेल्टा v बहुत बड़ा आ जाएगा, डेल्टा v बहुत बड़ा आएगा, डेल्टा x छोटा आ जाएगा. ठीक है, so which when we find out the uncertainty of velocity, it will come out to be 10⁻⁴, which is so large that the classical picture of electron moving in Bohr's orbit could not feel good. अब जब इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, इनकी वैल्यूज आई, तो बोहर का एटॉमिक मॉडल में वो फिक्स नहीं हो पा रही थी. ठीक है, it therefore means that the precise statement of the position of momentum of electron have to be replaced by the statement of probability that the electron has a given position and momentum. That is why it happens in the quantum method. अब तो ये हो गया, ये बात हुई कि जो हम बात कर रहे हैं कि जो हम पोजीशन और मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि प्रिसाइजली वी कैन नॉट फाइंड आउट एक्यूरेटली, उसकी जगह वी हैव टू यूज प्रोबेबिलिटी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग the position and the velocity of electron is very less. ठीक है, rather than saying precise. यही चीज, यही probability word has been used in मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो आज अभी एक्सेप्टेड है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है या नहीं, आई डोंट थिंक है जो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन और जो शेल सब शेल्स वाला मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वो उसमें प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज हुआ है. ठीक है, अच्छा, सी एग्जांपल 2.15. अच्छा, लेट अस सी, एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर आप लोग के पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया. So example 2.15 says a microscope using suitable photons is employed to locate an electron within an atom within a distance of 0.1 angstrom. ठीक है, what is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? इन्होंने कहा कि कैसे भी precisely we have found out the position of electron. ठीक है, तो position of electron came out to be 0.1 angstrom and it has been asked to find out the uncertainty in velocity. अगर हमने position निकाल ली है तो velocity में जो uncertainty आई है वो निकालो. तो डेल्टा v का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो it will come out to be h upon h upon 4 pi. We are taking less than or equal to, तो हम maximum value ले रहे हैं equal to 4 pi delta x into m, right? h की वैल्यू क्या है, 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ऑलवेज जब कांस्टेंट यूज करो तो वैल्यूज का ख्याल रखना, यूनिट्स का. 4 पाई की वैल्यू विल बी 3.14. सिंस वी आर डीलिंग विद मीटर तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 0.1 into 10⁻⁻10 and then we have
m, mass of electron will be 9.11. use it in kg into 10 raised to the power minus 31 kg. अब देखो तुम लोग कैलकुलेशन देखना कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले तो ये चीजें अलग कर दो, ठीक है. तो 6.626 अपॉन 4 इंटू 3.14, इसको इफ 0.1 यहाँ पे एक 10 बढ़ा दें तो क्या कर सकते हैं, सी मल्टीप्लाइड बाय what I'm doing is I'm showing कि कैसे कैलकुलेशन you can make it easy. 10 raised to the power minus 34 यहाँ पे है, ये एक और 10 बढ़ जाएगा अगर हम इसका डेसिमल हटाएं, राइट. डिवाइडेड बाय 10 raised to the power minus 10 into 10 raised to the power minus 31, ये बचा रहेगा 9.11. ठीक है. अब what I'll do is I'll leave this ऐसे ही, पहले इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 से कर लेते हैं. देखो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना भी सीखो. 3.14 को हम 3 ले सकते हैं और 9.11 को we can take 9. ठीक है. क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो it will have no effect on it. ओके. और एग्जाम्स में भी चलता है ये, कोई जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड्स में नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे. नहीं, फिर 3 से कट दो. 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 2s are 6 हो गया. 0 3 6 24, 6 3 8 24, 3 8 24. ठीक है. then we can use it by 9. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3 9 2s are 18, 19 20 21 30, 9 9s are 80, 9 5s are 45, 9 4 36, 9 3s are 27, 27 28 29 30 38, 9 9 4 36, 0.234 again 4, 0.54 the 20 34, 4 5 20, 4 4 78, 4 32, 4 9 4 8 0.58. ठीक है. तो इट कम आउट 0.58. अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं. अगर हम करते हैं 0.234 को 0.234 को हम 4 से डिवाइड कर रहे थे. 20 34 8 जा 32 टू 0.5 0.85 ठीक. अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा 41, राइट. ठीक है. अब ये 41 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू 10 रेज टू पावर पॉजिटिव 41 इंटू 10. ठीक है. अब 41 इसको और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 34 प्लस यहाँ पे 1 है तो 42. 34 और 42 को हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12 8 और ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस सॉरी प्लस 8. ठीक है. अब देखो 0.58 है अपॉन 10 इंटू 10 कर दो तो जाएगा 5.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 7. ठीक है. लेकिन 6 आ रहा है कहीं एक जीरो कहीं गलती हुई है कुछ. 3.14 इंटू 0.1 माइनस 10, ये माइनस 31 था, ये माइनस 34 था, कहीं एक जीरो की थोड़ी सी गलती हुई है. ठीक है. तो कैलकुलेशन ऐसे करना, मेरी कहीं कोई एक जीरो की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है जल्दबाजी में. कैलकुलेशन करना समझ में आया, कैसे अलग अलग करके धीरे धीरे कैलकुलेशन में आगे बढ़ना है. ठीक है. पहले मल्टीप्लाई मत करो, पहले फ्रैक्शन सॉल्व करो, मल्टीप्लाई सबसे आखिर में करना. ठीक. कहाँ हो गई भाई, ये एक 10 गड़बड़ कर रहा है आई थिंक. 0.1 नेगलेक्ट कर दिया होगा ऐसे ही. ठीक है. आंसर जो बुक में आ रहा है इट इज 5.7 इंटू 10 टू द पावर 6 और जो मेरा आ रहा है वो 5.8 इंटू 10 टू द पावर 7 आ रहा है. एक जीरो की कहीं मिस्टेक हुई है. यस. 10 to raise my power minus 34 into 10. How you put the 10? हाँ. अरे ये 0.1 को चेंज किया फ्रैक्शन में ना, 1 अपॉन 0.1 को आप 10 लिख सकते हो ना. ओ ओ यस यस सॉरी 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 नहीं 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 नहीं, ये तो गलती हुई है. ये यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा, राइट. तो ये हो जाएगा अपॉन, हाँ वही तो है, सही तो कह रहा हूँ. सी 0.1, राइट. तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1 अपॉन 10 तो ये 10 ऊपर नहीं चला जाएगा. नहीं समझ में आया. अच्छा छोड़ो,
वेट, ये भी छोड़ो, इसको ऐसे कर सकते हो, 0.1 है यहाँ पे, तो इसका एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, 11 कर दो और इसको हटा दो। अब ठीक है, यस मैम। तो वही तो किया था हमने, ऊपर कर दिया था इसको, अब ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में तो चेंज हो जाएगा, 41 हो जाएगा। See, if there is something, for example, 4 upon 5, and this 5 is divided by 6, so we can do like this ना, 4 divided by 5 upon 6, तो ये तो eventually तो यही आना है, 4 multiplied by 6 upon 5, ये 6 eventually ऊपर ही तो जाना है। तो बजाय मैंने एक स्टेप ये वाला दिखाने के डायरेक्टली यहाँ कर दिया था कि 0.1 से जो 10 नीचे आ रहा था वो डायरेक्ट न्यूमरेटर में लेके चले गए थे। ओके, बेसिक्स, बेसिक डिवीजन था वो। चलो, सो आर वी क्लियर विथ हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि वो क्या कहना चाह रहे थे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल हैज मास दिस मच एंड स्पीड दिस मच, if speed can be measured with an accuracy of 2%, accuracy of 2% मतलब uncertainty in velocity is 0.2, ठीक है, calculate the uncertainty in, अच्छा नहीं सॉरी, if the speed can be measured with accuracy of 2%, accuracy of 2% यानी 45 का 2%, ठीक है, स्पीड दी हुई, सी लेट मी एक्सप्लेन what has been given in question. क्वेश्चन में कहा है mass is 40 ग्राम, mass is equals to 40 ग्राम, speed is equals to 45 मीटर पर सेकेंड, और ये जो हमने कैलकुलेट की है इट हैज बीन कैलकुलेटेड विद, सॉरी इसमें जो हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा वी जो हम कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट इट विद 2% एक्यूरेसी, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 45 का 2% विल कम आउट टू बी 0.9, since it is a speed it is मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास डेल्टा वी आ गया, वी हैव टू फाइंड डेल्टा एक्स, इस रेड फॉर्मूले में रख के निकाल लेना, जो कि आएगी 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, जो बहुत कम आएगी, तो इसीलिए बड़े ऑब्जेक्ट्स में ये अनसर्टेनिटी नेग्लेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रीजंस फॉर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सॉरी बोहर्स मॉडल। इसके बाद व्हाट आर लेफ्ट, लेट मी सी, तो वी कैन सी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, एक पेज, दो पेज, अच्छा अभी एक क्लास और लगेगी इसमें, जल्दी इसको फिनिश करना है भाई, बहुत लंबा चल गया ये चैप्टर। यस, सो वी सी व्हाट वर द रीजन फॉर, अभी हमने लिमिटेशंस पढ़ी थी, अब रीजन क्या हुआ। नाउ वन कैन नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। इन बोहर मॉडल एन इलेक्ट्रॉन रिगार्डेड एज चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द न्यूक्लियस। तो बोहर मॉडल में क्या कहा गया था, बोहर मॉडल में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है जो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में एक वेल डिफाइंड तरीके से मूव कर रहा है, बट अभी हिजनबर्ग ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड द वेलोसिटी, तो उसकी ट्रेजेक्टरी निकालना इज इट इम्पॉसिबल, ठीक। द वेव कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोहर मॉडल, और बोहर मॉडल में जब तक हम लोग बोहर मॉडल पढ़ रहे थे, कहीं भी डिड वी केम अक्रॉस एनीवेयर द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं। फर्दर एन ऑर्बिट इज क्लियरली डिफाइंड पाथ, अभी जो मैंने बताया, एंड दिस पाथ कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड, दिस पाथ आप ऑर्बिट किसी की कब डिफाइन कर सकते हो, when you know the exact position and velocity which is not possible to calculate, okay। Bohr's model of hydrogen atom therefore not only ignores the dual behavior of matter but also contradicts the Heisenberg's uncertainty principle। तो दोनों ही चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। In view of these inherent weakness in the Bohr's model, there was no point in extending Bohr model to other atoms। तो अब क्योंकि वो हाइड्रोजन पे ही पूरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था,
तो इसीलिए हाइड्रोजन के आगे कुछ बोहर मॉडल पे स्टडी हुई ही नहीं कि अदर एटम्स की भी स्टडी कर ली जाए, ठीक. In fact, an insight into the structure of atom was needed, which could account for wave particle duality of matter and can be consistent with Heisenberg uncertainty principle. This came with the advent of quantum mechanics. अब हमें एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जो वेव नेचर को भी एक्सप्लेन करे, एटम कैसे बना हुआ है उसको भी एक्सप्लेन करे, और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी साथ में रखते हुए ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें. ठीक है, तो ये चीजें कैसे एक्सप्लेन हुई? ये चीजें एक्सप्लेन हुई क्वांटम मैकेनिक्स से. ठीक, अब शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. अभी तक जो भी पढ़ा, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, बोहर, ये वो, इज एवरीथिंग क्लियर? जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की थी वो एक बार रीड करना जाके, अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होगी उसको मार्क करके लाना, आई एक्सप्लेन. ठीक है, वो बस कुछ है नहीं वहां पे, सिर्फ फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरी वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है. कोई थ्योरी नहीं पूछता कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की डिस्कवरी कैसे हुई, नहीं, सब यही पूछते हैं कि लाइमन सीरीज के फर्स्ट लाइमन सीरीज, सेकंड लाइमन सीरीज, थर्ड लाइमन सीरीज की वैल्यू बताओ. ठीक है, तो ये पढ़ लेना अच्छे से कि लाइमन सीरीज, बामन सीरीज क्या है, ये सब चीजें देख लेना. अगर नहीं समझ में आएगी तो आई एक्सप्लेन. ठीक, देन वी हैव क्वांटम मॉडल ऑफ एटम. ना क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी, जो कि न्यूटन लॉज पे बेस है, वो डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्टोन कैसे गिर रहा है, ये सब चीजें वो एक्सप्लेन कर पा रही थी. बट इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे कि इलेक्ट्रॉन, एटम्स या मॉलिक्यूल. दिस इज मेनली बिकॉज द फैक्ट दैट क्लासिकल बिहेवियर ऑफ मैटर, स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब क्या कह रहे हैं, ये क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डुअल बिहेवियर, इन सब चीजों को इग्नोर करता है. ठीक, क्लासिकल मैकेनिक्स में ये सब चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ लॉज ऑफ मोशन लगते हैं. ठीक, तो जो 11th में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स. वर्क एनर्जी, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशन, ये सब क्लासिकल मैकेनिक्स है. क्लास 12th में जब हम लोग जाएंगे, हम लोग लाइट पढ़ेंगे, तो वहां पे आएगा क्वांटम मैकेनिक्स. ठीक है, quantum mechanics is a theoretical science that deals with the study of motion of microscopic objects, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? इट इज अ थियोरेटिकल स्टडी जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे स्टडी करती है. सारी कौन सी प्रॉपर्टीज पे? बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज. ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज पे बात करती है, सिर्फ एक प्रॉपर्टीज पे बात नहीं करती. What does it specify? It specifies that laws of motion, क्या कहा था? laws of motion, it specifies the laws of motion that these objects. अच्छा, तो ये अपने laws देती है. जैसे ये क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज ऑफ मोशन को नहीं मानती, ये अपने लॉज देती है, और ऐसे लॉज देती है जो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे एग्री करें. When quantum mechanics is applied to macroscopic objects for which wave-like particles properties are insignificant, the results are same as those from classical mechanics. अच्छा, अब ये भी कह रहे हैं कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स को आप मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट्स पे लगाते हो, तो आंसर सेम आता है. जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स से उसका आंसर निकालोगे, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स से उनका आंसर निकालोगे, तो दोनों का आंसर सेम आता है. ठीक है, तो इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सेप्ट भी कर ली, क्वांटम मैकेनिक्स एक्सेप्ट भी कर ली गई थी. ठीक, quantum mechanics was developed in 1926 by Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger. तो Heisenberg uncertainty principle वाले और Schrödinger equation वाले, इन दोनों ने मिलके quantum mechanics डिस्कवर करी थी. Here, however, we shall be discussing the quantum mechanics, which is based on ideas of wave motion. यहाँ पे सिर्फ हम wave motion की बात करेंगे, particle की बात नहीं करेंगे. The fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger, and it won him a Nobel Prize in Physics in 1933. तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेसिस है, दैट इज श्रोडिंगर्स इक्वेशन, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था 1933 में. दिस इक्वेशन व्हिच इनकॉर्पोरेट्स वेव पार्टिकल duality of matter as proposed by de Broglie is quite complex, and the knowledge of higher mathematics is new to solve it. अब
जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत हाई नॉलेज चाहिए होगी। क्लास 11 के बच्चे या मास्टर्स के बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हमें क्या जरूरत है, हमें बहुत हाई लर्निंग की जरूरत है। तो इस क्लास में हम सिर्फ इक्वेशन पढ़ेंगे, विल नॉट डिराइव, विल नॉट स्टडी एनीथिंग एल्स दैट है अदर देन दैट। ओके ओके, सो लेट अस मूव टू Schrodinger's equation for a system। कैसा सिस्टम, जिसमें एटम सच एज एन एटम और अ मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही हो, ठीक है, ऐसा सिस्टम है। कैसा सिस्टम, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल, देखो जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इफ आई एम वर्किंग ऑन दिस टैब, so this is system. If I'm working on a phone, that phone is my system. If I'm working on my hand is my system, ठीक है। तो साइंस में सिस्टम इज समथिंग ऑन विच यू आर वर्किंग, ठीक। तो फॉर अ सिस्टम, दैट सिस्टम कुड बी एन एटम, दैट सिस्टम कुड बी एन मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। सो फॉर दैट श्रोडिंगर्स इक्वेशन विल बी रिटन लाइक दिस, h psi is equals to e psi। कुछ समझ में आया क्या लिखा? जब पहली बार लिखा जाता है तो ऐसे ही होता है। जब पहली बार क्लास 11th में श्रोडिंगर्स इक्वेशन देखते हैं तो ये क्या लिख दिया, h psi is equals to e psi। सी, जो h है इट इज एन ऑपरेटर, मैम ठीक है। कैसा, यस जादू का साइन। ये वही है, ये ऐसा लग रहा है कोई और भाषा है। इट इज एन ऑपरेटर, ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडर ऑपरेटर ना, ऐसे ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो इट इज ऑफ नॉट नॉट ऑफ आर यूज। तो एच, तो अगर अब यही आएगा कि श्रोडिंगर्स इक्वेशन क्या होती है, तो एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, वेयर एच इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसको हैमिल्टन कहते हैं। श्रोडिंगर्स ने ठीक इतना लिखना है, व्हाट इज श्रोडिंगर इक्वेशन, एच, इसको साई कहते हैं, साई पढ़ते हैं, ठीक है। तो एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, where H is a mathematical operator for Hamilton. Schrodinger gave a recipe for constructing of this operator from the expression of total energy of the system। अब Schrodinger ने इस ऑपरेटर को भी बनाया है, प्लस माइनस डिवाइड एक ऑपरेटर है, ऐसे एच कैप भी एक ऑपरेटर है। Schrodinger ने इसको पूरा बनाया है, जो हमारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। The total energy of the system takes into account, अच्छा ये E क्या है, total energy। total energy क्या है, total energy is the kinetic energy of the system of all the subatomic particles, electrons, nuclei, सबका, सबकी एनर्जी क्या, कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, attractive potential between the electrons and the nuclei and repulsive potential between the electrons and the nuclei, ठीक है। जो भी एनर्जीज हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, ई जो है वो टोटल एनर्जी ले रहा है, ठीक। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स ई एंड साई। अब जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें ई और साई की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अभी क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है, बस इतना समझ लो, दिस इज श्रोडिंगर्स इक्वेशन। इसमें एच कैप एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसको सॉल्व करके हम लोग एनर्जी और साई की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम एंड द श्रोडिंगर। अब हमारे काम की बात, हाइड्रोजन एटम से कैसे उसको रिलेट किया गया, कैसे वो सॉल्व करेगा हमारी प्रॉब्लम। व्हेन श्रोडिंगर्स इक्वेशन इज यूज्ड टू सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, the solution gives the possible energy levels the electron can occupy and the corresponding wave function। it is a wave function, psi is a wave function, ठीक है। wave function क्या, of the electron associated with each energy level। तो जब हम लोग हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें हर एनर्जी लेवल के लिए एक वेव फंक्शन आता है। These quantized energy states and corresponding wave function which are characterized by a set of 3 quantum numbers। अच्छा, अब श्रोडिंगर्स इक्वेशन सॉल्व वगैरह करके जो हमारे काम की बात है, हमें तीन क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं। देन वी हैव अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम l से डिनोट करते हैं। एंड देन वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अभी आगे एक स्पिन भी आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, ठीक है, m l। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्व करके जो हमारे काम की चीजें हैं वो ये हैं कि वेव फंक्शन जो कैरेक्टराइज, किसी भी एटम का अगर आपको वेव फंक्शन कैरेक्टराइज करना है तो इन 3
क्वांटम नंबर से कर सकते हैं. व्हाट आर दीज क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है, ये किससे आए हैं? श्रोडिंगर की इक्वेशन सॉल्व करके आए हैं. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी स्टेट्स, the wave function correspond to the energy state contains all information about the electron. अब कह रहे हैं किसी भी आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, ठीक है, एंड इट इज इन एनी एनर्जी स्टेट, कोई भी एनर्जी स्टेट ई में है, तो उसका जो हम वेव फंक्शन निकालेंगे वो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारी देगा. ठीक है, इट विल गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन. क्या, कैसी इंफॉर्मेशन? कैसा उसका ऑर्बिटल है, कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव, सारी इंफॉर्मेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. The wave function is a mathematical function whose value depends upon the coordinate of electron in the atom and does not carry any physical meaning. अच्छा जी, वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, या आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा. इट इज एन इमेजिनरी टर्म. Such wave function of hydrogen or hydrogen-like species with an electron is called atomic orbital. अब ये कह रही है वेव फंक्शन को किससे किससे कहा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, एटम के जो ऑर्बिटल्स है, इट इज एन इमेजिनरी टर्म्स, ये एग्जिस्ट की कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है. असली में तुम जाके एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं देख सकते. ठीक. Such a wave function pertaining to one electron species are called one electron system. अच्छा, अब ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी अभी हम लोग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए शुरू में हम लोग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए. ठीक. The species, the probability of finding electron to a point within an atom is proportional to psi square at that point. अच्छा, अब मान लो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में कोई जगह देखी. ठीक है, उस जगह पे 15 मिनट, उस जगह पे एटम निकालने की प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर. ठीक. अब क्या है बस एक ये वो आएगा वन क्या कहते हैं उसको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आता है ना, टिक द करेक्ट आंसर, उस फॉर्म में आएगा. इतना डीप आप पढ़ ही नहीं सकते इसको, ये हाई लेवल की चीजें हैं. ठीक. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज प्रोपोर्शनल टू दिस वेव फंक्शन का मॉडुलस का स्क्वायर. ठीक. The quantum mechanical results of hydrogen atoms successfully predicts all aspects of hydrogen atom, including spectrum, which could not be explained by Bohr model. अब क्या है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया हाइड्रोजन के लिए, उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. ठीक. इसीलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अभी भी चल रहा है. एप्लीकेशंस ऑफ सॉरी application of Schrodinger equation to multi-electron system presents a difficulty. क्या डिफिकल्टी आती है अगर हम इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में लगाते हैं अदर देन हाइड्रोजन? द श्रोडिंगर्स इक्वेशन cannot be solved exactly for a multi-electron system. This difficulty can be overcome by using approximate method. अब श्रोडिंगर्स इक्वेशन जो थी उसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रही थी, अप्रोक्सीमेट आंसर दे रही थी. ठीक. Such calculation with the aid of modern computers show that the orbitals in an atom other than hydrogen do not prefer any radical from hydrogen atom as discussed above. अच्छा, अब ये भी कह रहे हैं ये कि श्रोडिंगर्स इक्वेशन हमने लगाई नहीं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, अगर लगाएंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी पड़ेगी. ठीक है. उसके बाद ये कहना है अगर हम सुपर कंप्यूटर से मान के कैसे भी निकाल भी लेते हैं तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो जैसा अंदर हाइड्रोजन के दिखता है वैसा ही सब कुछ अदर एटम्स के अंदर भी दिखता है. ठीक है. व्हाटएवर द थिंग्स, व्हाटएवर द atomic orbital, whatever the energy states, whatever things are there in hydrogen, other atoms also have the same. ठीक. The principal difference lies in the consequence of increased nuclear charge. The only difference that have between hydrogen and other atomic species is that उनके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है. क्यों ज्यादा होता है? उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है. जितने ज्यादा चार्ज उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक. Because of this, all the orbitals are somewhat connected. Further, as you shall see later, अभी आगे की topics में, unlike orbital of hydrogen or hydrogen-like species, whose energy only depend on quantum number, the energies of orbital in multi-electron system also depend on n and l. अच्छा, अभी देखो ये कह रहे हैं कि एक और डिफरेंस ये है कि अभी हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो शेल्स की बात करते हैं ना, n l m, थोड़ा बहुत आइडिया होगा.
हाइड्रोजन क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो सब कुछ उसके एन शेल में ही खत्म हो जाता है, बट व्हेन वी डील विथ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो एन एल एम सब के ही सारे ही क्वांटम नंबर्स पे उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो वन डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन, एक तो न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंस आ गया, एक ये भी आ गया। ठीक, नाउ लेट अस स्टडी ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। क्या मेन चैप्टर का जो ओरिजिनल थिंग है जो अप टू डेट है वो ये है। A large number of orbitals are possible in an atom. Quantitatively, these orbitals can be distinguished by their size, shape and orientation. ठीक, अच्छा, क्या कह रहे हैं? किसी भी एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे हो सकते हैं। उनको क्वालिटेटिवली कैसे अलग कर सकते हैं, मतलब उन क्वालिटेटिवली मतलब उनके उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको कैसे अलग कर सकते हैं? बाय देयर शेप, साइज एंड ओरिएंटेशन। शेप कैसा, कोई डम्बल शेप होगा, कोई दूसरा शेप का होगा। साइज कैसा, कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। ओरिएंटेशन, कोई एक्स में जाएगा, कोई वाई में जाएगा, कोई जी में जाएगा। अभी आज से जैसे यू मूव आगे यू विल अंडरस्टैंड। ठीक, तो वी विल डिफर दीज ऑर्बिटल्स by their shape, size and orientation. An orbital of smaller size means that there are more chance of finding the electron near the nucleus. अगर किसी का भी ऑर्बिटल छोटा है इसका मतलब उसके न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सी प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज हो रहा है, प्रिसाइज वर्ड नहीं यूज हो रहा है, इसीलिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक्सेप्ट हुआ है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मान लो एक एटम है, ठीक है, वो छोटा है तो उसका न्यूक्लियस है, उसका ऑर्बिटल पास होगा, राइट? तो अगर उसका साइज छोटा है, बट इफ वी हैव एन एटम, उसका साइज बड़ा है तो उसका ऑर्बिटल दूर होगा, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, बट इफ इट इज स्मॉल तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। Similarly, shape and orientation means that there are more probability of finding the electron along certain direction than other. अब शेप और ओरिएंटेशन का मतलब कि अगर मान लो डम्बल शेप है तो डम्बेल में कहीं एक जगह इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ओरिएंटेशन मतलब अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो हमें ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ आई एम सेइंग दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज इन एक्स एक्सिस सो वी कैन find it, we won't have to look at the y axis and z axis again. ठीक, अच्छा, now to study more easily, now क्या है similarly, ठीक है, atomic orbital are precisely distinguished by what we know as quantum number. अब उनको distinguish करने के लिए, थोड़ा समझने के लिए उनको distinguish किया गया है, क्या कह के क्वांटम नंबर कह के कैसे डेजिग्नेट किया गया है। n is the principal quantum number, L is the azimuthal quantum number, and L is the principal quantum number, N is the azimuthal quantum number, and M is the magnetic quantum number. अभी इसके एक आगे आता है स्पिन क्वांटम नंबर, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर जिसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। प्रिंसिपल मतलब एकदम प्रिमिटिव। ठीक, पहला जरूरी, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमिन्स द साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है कि कितना बड़ा हमारा ऑर्बिटल है, साइज और एनर्जी मालूम पड़ती है। इसीलिए सी, जब हम लोग बोहर एनर्जी निकाल रहे थे डेल्टा ई, सो वी वर टेकिंग एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट कंट्रीब्यूट्स टू द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, ऑल्सो इट डिटरमिन्स द इट डिटरमिन्स द साइज। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम लोग शेल भी कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग एस पी सब शेल, एस सब शेल ये पढ़ते हैं ना, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग शेल्स भी कहते हैं। एंड द नंबर अलाउड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 से लेकर के वॉट एवर यू कैन गिव। ठीक है, सो अभी हमें कुछ नंबर्स पढ़ेंगे जो अलाउड होंगे हर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, वो याद करना पड़ेगा। The principal quantum numbers also identifies as shell. With increase in the number of n, the number of allowed orbital increase, and the value is given by n square. For example, all the orbitals of the given value n constitute single subshell. For example, जैसे कि if we are talking n is equals to 1 का मतलब it is k shell. ठीक है, अब 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें सब शेल्स एक ही होंगी। ठीक है, ऐसे ही इफ यू टॉक अबाउट 2 का L,
ठीक है, 3 का m एंड 4 का n। अगर तुम लोगों को याद हो, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, तो के एल एम एन शेल में, के में है ये इलेक्ट्रॉन, एल में है ये इलेक्ट्रॉन, एल में है ये इलेक्ट्रॉन, तो यही है। ठीक, यही ये शेल्स हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, तो पहले फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें कार्बन का, तो के एल एम एन। ठीक, कार्बन का होता है 6, तो पहले में एक, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दो, फिर 2, 4, और दूसरे में 4, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4 इलेक्ट्रॉन। यही यही तो हम लोग पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, के एल एम एन। अभी इसको और क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक, साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना ज्यादा क्वांटम नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ता रहेगा, जितनी ज्यादा शेल्स बढ़ेंगी, साइज बढ़ता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो उसमें सिर्फ एक शेल होगा। उसी में अगर हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम में शेल्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उस हिसाब से, जैसे कि सोडियम का 11 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 6 7 8 9 10, 3s1, तो इसमें 3 शेल्स आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3। ठीक, जैसे जैसे शेल्स बढ़ता रहेगा, साइज बढ़ती रहेगी। ठीक, इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अब वही बात है कि जब शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, तो जो एनर्जी चाहिए होगी पॉजिटिव चार्ज को कहीं से दूर जाने के लिए, वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक, जितना दूर जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी। सो since the energy required is shifting away the negatively charged electron from the positively charged nucleus, the energy of the orbital with increase of n। क्या करना है, सी, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों साथ में है। इनको दूर करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। जैसे जैसे सब शेल्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे, उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, देन वी हैव एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू कहां से लाई करेगी, इसकी वैल्यू लाई करती है 0 से n-1 तक। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि वी हैव n इज इक्वल्स टू 2, तो l की वैल्यू कहां से लाई करेगी, l की वैल्यू लाई करेगी 0, n-1 यानी 1। ठीक है, तो इसका मतलब 2 में 2 ऑर्बिटल्स होंगे, s और p। ठीक है, अभी अभी इसका डेजिग्नेशन नहीं बताएंगे कि 0 का मतलब s होता है, 1 का मतलब p होता है, 2 का मतलब spd होता है। ठीक है, यही होता है जो हम लोग 1s2, 2s2, 2p3 पढ़ते हैं, वो इसी का मतलब होता है। ठीक, इट डिफाइंस 3D डायमेंशन ऑफ द जेमेंथल क्वांटम नंबर। क्या करता है, इट डिफाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कर रहा था, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक, it define okay, then we have its value ranging from this to this। for example n is equals to 1, तो l की वैल्यू 0 हो जाएगी, n is equals to 2 होगा तो l की वैल्यू 2 हो जाएगी, 0 और 1। then we have n is equals to 3, जिसकी वैल्यू 1 और 2 हो जाएगी। ठीक, each shell consists of one or more sub shells and sub levels। हर शेल के पास सब शेल या सब लेवल होंगे, जो हम लोग 1 2 की बात कर रहे हैं ना, वही। the number of sub shells in a principal shell is equal to the value of n। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट शेल n इज इक्वल्स टू 1, इसके लिए वी हैव l इज इक्वल्स टू 0। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट शेल n इज इक्वल्स टू 1, देयर इज ओनली वन सब शेल जिसको l इज इक्वल्स टू 0 है। उसी की तरह अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 लें, तो इसमें दो सब शेल होंगे, l इज इक्वल्स टू 0 और 1। यानी कि अगर हम पहले शेल की बात करें, तो उसमें वी हैव ओनली s सब शेल। अगर हम दूसरे शेल की बात करें, n इज इक्वल टू 2, तो उसमें s और p आएगा। फिर तीसरे में जाएंगे तो s p d आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए वी डोंट हैव 2d। इसीलिए हम हमारे पास 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 2d नहीं होता। क्यों, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए। ठीक है, सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l, मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ l क्या हो सकती है, 0। सी, if I'm saying कि n की वैल्यू लाइज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो l की वैल्यू कहां से लाई करेगी, इसका मतलब l की वैल्यू 0 से n-1 लाई करेगी, राइट। तो अगर n को हम कह रहे हैं 1 2 3, तो l की वैल्यू 0 1 2
3 ऐसे ऐसे आएगी। अब इसको हम लोग डेजिग्नेट कर देते हैं एस पी डी एफ, ठीक, जी एच आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसे होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज बताता है और बाइट की, एजिमुथल क्वांटम नंबर वो बताता है शेप, 3D शेप बताता है। ठीक, देन वी हैव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें स्पेशियल ओरिएंटेशन देता है। स्पेशियल ओरिएंटेशन मतलब हम लोग कहते हैं ना कि ये बॉन्ड y एक्सिस में बन रहा है, ये बॉन्ड x एक्सिस में बन रहा है, तो वो बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फॉर सब शेल वी डिफाइन l वैल्यूज। तो अगर हम m की बात करें तो m विल लाई बिटवीन -l टू +l। ठीक है, मतलब -l, l-1, l-2, ऐसे करके 0 फिर 1 2 ऐसे करते करते मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ये हो जाती है। अच्छा, अब ये सब क्या है अभी नहीं समझ में आएगा। जब हम लोग इसके थ्रू न्यूमेरिकल करेंगे या किसी एटम के हम सारे शेल्स सब शेल्स निकालेंगे, then you will be able to understand easily कि what are these quantum numbers and how are these quantum numbers used। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे समझाएं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग 4s2, ठीक है, 4s2 का मतलब 4 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, 2 इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और आगे बढ़े तो 4s2 में जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होगा ये +½ और ये -½ दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, एक हाफ और एक माइनस। ओके, these were the topics of quantum number।